سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق اور ساری کائنات کا مدبر ہے. اسی کی توفیق سے آج ہم مہاراشٹر اور ممبئی سے دور سہی لیکن اپنے کلمہ گو بھائی اور بہنوں کے بیچ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے کا موقع پا رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس طرح کے مواقع ہمیں بار بار عطا فرمائے. بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزمان امام انس و جان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الاسر فاؤنڈیشن اور اس کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے سماج سدھار کے لیے اللہ کے اس گھر کے حوالے سے ایک عزم اور ایک پختہ ارادہ کے ساتھ اپنے بھائی اور بہنوں کی اصلاح پر جٹے. اللہ تعالیٰ تمام اراکین، ممبران، ذمہ داران، مبلغین اور دعات الاسر فاؤنڈیشن کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے، ان کے اعمال میں اخلاص دے اور انہیں مزید حوصلے کے ساتھ یہ مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کام کو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. تعمیر سماج میں نوجوانوں کا کردار. نوجوانوں، کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو ویٹ کیا ہے؟ یہاں کے ترازو پر نہیں، اسلام کے ترازو پر. آپ کا ویلو اسلام میں کیا ہے؟ کل قیامت کے دن
جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے بچے تک کو نہیں پہچانے گی، بچے اپنے ماں اور باپ سے دور بھاگیں گے، سورج قریب آ چکا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا، ہوگا تو صرف ایک سایہ، only one shadow, that is the shadow of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. اس دن اللہ رب العالمین 7 کیٹیگری کے لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا. ان 7 میں سے ایک آپ ہو، جوان ہو آپ، نوجوان ہو آپ، اگر آپ نے اپنی جوانی کو صحیح رخ پر لگایا ہے، چاہے آپ مرد ہو یا عورت، اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، تو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ہمیں، اور اللہ تعالی ہمیں وہ سایہ نصیب فرمائے. میرے بھائیو، عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس کا ذکر ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنی جوانی عبادت خداوندی میں گزاری، رجل نشأ، شاب نشأ فی عبادت اللہ. شابن کا مطلب جوان، شباب جوانی کو کہتے ہیں. وہ جوان بھی ہوگا عرش کے سایہ تلے جگہ پانے والا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو بتائی. کیا مطلب؟ صرف وہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ جڑا رہا ہو، صرف وہ روزے، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں کرتا رہا ہو. جی ہاں، یہ بھی، اس لیے کہ عبادت کا مغز ہے یہ. لیکن میں آپ کو نوجوانوں بتانا چاہوں گا کہ ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. اس لیے کہ عبادت صرف کرنے ہی کا نام نہیں ہے، عبادت نہ کرنے کا نام ہے. نہیں سمجھا آپ نے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنا جس طرح عبادت ہے، ایسے ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. نبی کی سنت پر عمل کرنا جس طرح عبادت ہے، ایسے بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی بولو عبادت ہے. تو جہاں کرنے کا نام عبادت ہے، وہیں بہت ساری چیزوں سے بچنے کا نام بھی عبادت ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی ہو، اپنی جوانی بتائی ہو، بھلے وہ اپنے بزنس اور کاروبار میں ہو لیکن سچائی کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہو، دیانتداری کا ثبوت دیتا ہو، لوگوں کے ساتھ اگر کوئی اس کا مقروض ہے مہلت انہیں دیتا ہو، نرمی ان کے ساتھ برتتا ہو، لینے میں بھی نرمی اور کسی کو دینے میں بھی نرمی. یہ تمام عبادات ہیں. زندگی کے ہر قدم پر اگر ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ حرام سے بچیں اور حلال کے راستے پر چلیں، حلال چیزوں کو اپنائیں، تو ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ بولو عبادت ہے. نوجوانوں، آپ ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر کبھی پڑھو. زمانے نے جب کبھی انقلاب دیکھا ہے تو آپ کے دم سے، آپ کے اس گرم لہو سے زمانے کو انقلاب ملا ہے. آپ تھے جن کو خالد بن ولید کہا گیا رضی اللہ عنہ وارضا. آپ تھے جن کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا گیا، جنہوں نے در خیبر کو اپنے پہلوانی سے، اپنی بہادری سے اکھاڑ پھینکا تھا. آپ تھے جن کو اسامہ بن زید کہا جاتا تھا، جن کی کمانڈری میں مرتدین کا سر قمع کیا گیا اور ان کے فتنے کو روکا گیا. آپ تھے جن کو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے یاد کیا گیا.
आप ही थे, आप ही की तारीख है। क्या आपको दुनिया ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से भी याद किया है? तारीख और हिस्ट्री गवाह है। आप हैं नौजवानों कि आपको मोहम्मद बिन कासिम किसी जमाने में कहा गया और पुकारा गया। आज उनकी तारीख हमारे सामने पड़ी। क्या आज हम तामीर समाज में हिस्सा नहीं ले सकते? बोलो जवानों, ले सकते हैं। यहां पर यह बात वाज़ेह रहे कि जिस तरह समाज को आगे बढ़ाने में पॉजिटिव अंदाज में हिस्से लेने का नाम तामीर समाज है, ऐसे समाज के अंदर फितना व फसाद, करप्शन, बिगाड़ और इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाना और समाज को बचाने की कोशिश करना भी समाज की तामीर है। हमारे ज़हन तामीरी हो जाएं तो जिस तरह किसी काम को करना समाज के लिए तामीर है, ऐसे ही किसी काम से बचना जो बुराई का काम है, ये समाजी तामीरी सोच है। आओ मैं बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नौजवानों का जिक्र फरमाया है। जवानों का तस्करा अल्लाह ने किया। सूरह कहफ सूरत नंबर 18 आयत नंबर 13। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ऐ नबी, हम आप पर उन नौजवानों का किस्सा बयान कर रहे हैं जो अपने रब पर ईमान लाए थे। बिल्कुल ठीक ठीक सच सच आपको हम सुना रहे हैं। वो ईमान लाए, इन्नहुम आमनू बिरब्बिहिम। वो नौजवान, अल्लाह ने उनका जिक्र ईमान के साथ किया है, इसलिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी भलाई क्या है? बोलो, सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान की दौलत। अल्लाह ने इसी का जिक्र उनके साथ किया है। और उनके लिए इन्नहुम फित्यतुन, बेशक वो जवान थे। नौजवान भी जिक्र तर्जुमा इसका कर सकते हैं, क्योंकि फतन यूथ, उसी से फित्यतुन जमा का सिगा है, प्लूरल है, प्लूरल ऑफ फतन, इसके माने नौजवान के भी। नौखेज नौजवान जो शऊर की मंजिल तय कर रहा हो, हक और बातिल को समझ रहा हो, सच और झूठ में फर्क करने लगा हो, और इस फर्क को समझते हुए हक की राह में वो कोशिशें अपनी लगा रहा हो, बातिल के राह की रुकावटें वो दूर कर रहा हो, तो वो जवान, उसका जिक्र, वो नौजवान है। आमनू बिरब्बिहिम, अल्लाह ने कहा ऐसे जवानों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, जो अपने रब पर ईमान और यकीन लाए थे। वो ज़िदनाहुम हुदा, और इस तरह हमने उनको मजीद हिदायत अता फरमाई। कौन थे ये जवान? नौजवानों कौन थे जिनका जिक्र कुरान ने किया? अस्हाबुल कहफ, जिनको अल्लाह ने एक लंबी नींद सुलाई, गार के अंदर वो छुपे रहे और फिर अल्लाह ने उनको जगाया। मैं उस तफसीली किस्से में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ईमान की दौलत को पाना, उसके तकाजे को पूरा करना, ये समाज की तामीर है। बोलो है या नहीं? जी हाँ। अगर आज दुनिया ईमान हासिल करके, आज ये ईमानी मुआशरे के लोग, इंसानी बिरादरी के लोग जिन्हें ईमान की दौलत मिली है, अगर वो इसके तकाजे पूरे करने पर आ जाएं, हमारा समाज अमन और शांति का गहवारा बन जाए। लेकिन आज यही ईमान हम पाकर इसे गंवा रहे हैं, हम इसकी कदर और कीमत को नहीं समझ रहे। जहां तहां, चाहे वो तिजारत और बिजनेस का मामला हो, हमारे नौजवान औने पौने सौदेबाजी करते हुए दुनिया के चंद सिक्कों के बदले अपना ईमान बेच रहे हैं। झूठ बोलकर बिजनेस और तिजारत की जा रही है, और कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बाउंड्री में गए तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के अफेयर्स के जरिया अपने ईमान को बेचा जा रहा है। गैरों से ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं, खवातीन को अपना फ्रेंड बनाया जा रहा है, और इस तरह दीन और धर्म तक की परवाह किए बगैर अपने आप खुद अपना लाइफ पार्टनर हमारे नौजवान तलाश कर रहे हैं। ईमान की कोई परवाह नहीं। ये तामीर समाज नहीं है, ये तखरीब समाज है। कैसे हिफाजत किया था ईमान की? सहाबा किराम ने
سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 2 306 نمبر صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے اور آپ سب جنت جہنم کی سیر کر کے آئے، آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، اور آ کر کے جب آپ نے مکی کے سرداروں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں راتوں رات گیا تھا بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہوں، تو ابو جہل جیسے لوگ جو فتنہ پرداز تھے انہیں موقع مل گیا، چلو فتنے کی آگ بوئیں گے۔ یہ بات کسی کی عقل میں نہیں گھس سکتی کہ راتوں رات آدمی فلسطین پہنچ جائے، جہاں کے لیے ہفتوں اور مہینوں ہمیں لگتے ہیں، اور یہی نہیں وہاں سے آسمانوں کی سیر پر کوئی جائے اور رات ہی میں واپس آ جائے۔ چلو اب اس دین کو بدنام کرنے کا اچھا موقع ہے۔ سب سے پہلے گئے تو کہاں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ابو جہل اپنی ٹولی کے ساتھ گئے۔ ابو بکر ایک بات کرنی ہے، کیا ہے بولو؟ یہ بتاؤ اگر بیت المقدس اور فلسطین جانا ہو تو کتنا عرصہ لگے گا؟ اچھا خاصا لگے گا، ہمارے پاس اونٹ اور گھوڑے بھی ہوں، تیز ترین سواریاں بھی ہوں، تب بھی اچھا خاصا وقت لگے گا۔ اچھا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں، بلکہ یہی نہیں آسمانوں پہ جا کے لوٹ کر آیا ہوں، تو مانو گے؟ ابو بکر تم تو ہمیں پریشرائز کرتے ہو، ایمان لے آؤ، یقین کرو، مان لو، سر تسلیم خم کر دو، بتاؤ کیا ایسی بات بھی مانی جا سکتی ہے؟ ابو بکر کیوں آخر اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہو اور ہمیں بھی پھنسانا چاہتے ہو؟ دیکھیے ابو جہل کس قدر فتنہ ہو رہا ہے، لیکن ابو بکر کا جواب سنیے رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کا ایمان جس کی مثال قرآن نے دی ہے، ان کی مثال کو سیمپل کے طور پر انسانوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے اللہ نے پیش کیا ہے۔ کیا کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ من قال هذا یا بچہ یا بالحکم من قال هذا، کس نے کہا ہے؟ کس کی زبان سے سنا ہے آپ نے؟ کہا آپ کے مرشد محمد بن عبداللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر ذرا بھی جھجکے نہیں، زبان پر جو دوسرا جملہ تھا وہ یہی تھا، انہ لصادق واللہ انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلك۔ اگر محمد بن عبداللہ نے کہا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بات میں سچے ہیں، 100% میں اس پر ایمان لا رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ان کی سن کر ایمان لا چکا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں مانتا ہوں اللہ واحد موجود ہے۔ انہوں نے جنت اور جہنم کی خبر ہمیں دی، نہیں دیکھا ہے ہم نے، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں بہت ساری غیبیات کی چیزیں وہ بتا چکے ہیں، میں نے نہیں دیکھا لیکن میں ان کو سچا مانتا ہوں، اس لیے ان تمام چیزوں پر ایمان اور یقین لاتا ہوں۔ اے ابو جہل میرے ایمان کا جائزہ مت لو، میرے نبی کی زبان نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہ 100% سچی ہے۔ ابو جہل اپنی ٹولی کے ساتھ واپس گیا، دال اس کی نہیں گئی۔ میرے بھائیوں یہ ایمان ہے جس کی قیمت ہم بھول گئے۔ سماج کی تعمیر اگر ہمیں کرنی، تعمیری سوچ اگر ہم رکھتے ہیں تو نوجوانوں آؤ عزم کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ سماج کے ان نوجوانوں کو جو غلط راہ پر لگ رہے ہیں ان کے بھی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ایسی تعمیری سوچ عطا فرمائے۔ وہ نوجوان تھے جنہوں نے تعمیر سماج کے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ جب کبھی برائی کا موقع آیا، برائی ہو سکتی تھی ان سے، سارے لوازمات موجود تھے، سارے تقاضے موجود تھے، لیکن نہیں، تعمیری سوچ، اللہ کا خوف رکھنے والے وہ بندے، انہوں نے لذت اور عیش کے تمام اوقات کو اس کی قربانی اللہ کے لیے دی، لذت کوشیوں سے
लुत्फ अंदोजियों से, हराम कारियों से, फहश बातों से और फहश कामों में मुब्तला होने से उन्होंने अपने आप को बचाया। कैसे बचाया? तामीर समाज का कैसा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया? एक वाक़या आप सुनिए। ये वाक़या इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2701 2701 मुस्तदरक हाकिम की रिवायत, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत। उसमें है कि मरसद बिन अबू मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है। वो ईमान लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ, मदीना चले गए, लेकिन बड़े पावरफुल ताकतवर बॉडी बिल्डर थे, वो पहलवान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उन नौजवानों की फहरिस्त में चुन लिया जिनको आपने मुतय्यन फरमा दिया था कि जाओ मक्के के वो लोग जिन्होंने हमारे ईमान लाने वाले भाइयों को, हमारी बहनों को उन्होंने बेड़ियां पहना दी हैं, कैद कर रखा है, इसलिए कि वो उनके गुलाम हैं, इसलिए कि वो उनकी लोडियां हैं, जाओ जैसे मौका मिले उनको बेड़ियों से आजाद करके मदीने की राह पर लाकर डाल दो, ताकि वो भी हिजरत करके चले आए और अपने ईमान का पौधा यहां लगा सके। ठीक है, अल्लाह के रसूल जाऊंगा। मरसद बिन अबू मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से आते और इस तरह इन गुलामों को, इन कैदियों को छुड़ा करके बेड़ियों से खोल कर लेकर जाते और इस तरह से मदीने की राह पर लगा देते। कितनों को उन्होंने आजाद करवाया। एक बार मरसद बयान करते हैं कि मैं मक्के पहुंचा, सूरज ढल चुका था लेकिन अभी लोग सोए नहीं थे, इसलिए मैं करीब के खजूर के बागीचे में उसकी बाउंड्री के करीब छुप गया। जब मुझे यकीन हो चला कि अब लोग खा पी कर सो रहे होंगे, तब मैं अपने शिकार की तरफ चला कि चलो अब अपने गुलाम, अब अपने उन भाइयों को, ईमान वाले कलिमा गो भाइयों को बेड़ियों से आजाद करके लेकर आऊं, जिस काम का मुझे मामूर किया गया है, तामीर समाज का जो काम मुझे दिया गया है मैं उसे करूं। बोले मैं उस बाउंड्री से गुजर रहा था, चांदनी रात थी, एक साया आता हुआ दिखाई दिया और इतने में बस सामने हूं, एक कोई और नहीं, एक खातून थी जिसका नाम था अनाक, आइन नून अलिफ काफ, जो काफिर थी, मुशरिक थी। वो सामने आई, तुम हो मरसद? हाँ मैं हूं। असल में ये अनाक इस्लाम लाने से पहले मरसद की फ्रेंड थी जमाने जाहिलियत में, उनसे रवाबित और ताल्लुकात थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तौबा कर लिया था। वो काफिरा और मुशरिका कहती है मरसद बड़े जमाने के बाद मिले हो, रात का सन्नाटा है, तन्हाई है, चलो जब आ ही गए हो, मुलाकात हुई है, आज की रात तो हमारे साथ गुजार लो, पुरानी यादें ताजा कर ली। मरसद जवाब देते हैं अना मुस्लिम या अना मुस्लिम अल-आन, नाउ आई एम अ बिलीवर, आई एम अ मुस्लिम। क्या मतलब? मरसद क्या तुम भूल गए? पुरानी यादें सब भुला दी तूने? कुछ नहीं याद है? मरसद चलो डर किसका है, तुम हो मैं हूं, सारी दुनिया तो सो रही है, मेरे बाजुओं में एक रात और गुजार लो। मरसद ऐसा वक्त और कब मिलेगा? ये तन्हाई, ये सन्नाटा, ये रात का समा। कहते मरसद की अना मैं मुसलमान हो गया हूं, अब ये सब करना मेरे लिए हराम है, मैं तो अब तुम्हें अपने हाथों से टच भी नहीं कर सकता। अच्छा बड़े दीनदार बने तुम, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो अभी मैं शोर मचाती हूं, पूरे मक्के वालों को जगाऊंगी, दौड़ाऊंगी और तुम अभी पकड़ लिए जाओगे, धर लिए जाओगे और तुम्हारी मरम्मत हो जाएगी, अभी मैं चाहती हूं। मरसद ने कहा जो बन आए करो अना, लेकिन उस वक्त मैं जमाने जाहिलियत की जिंदगी जी रहा था और अब मुझे इस्लाम और ईमान मिल गया है, मैं अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा, मुझे उस दिन की रुसवाई से डर लगता है। अना जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी आरजू अब नहीं पूरी कर सकता। नौजवान, ताकतवर, पावरफुल, बॉडी बिल्डर इंसान जो ऐसे काम पर मामूर हुआ है, जो कम भी लोग हिम्मत करते हैं कि जाओ इन गुलामों को बेड़ियों से आजाद करके
उनको गोद लेकर आओ और ला करके मदीने की राह पर डालो। वो नौजवान किस कदर बुराई के चांसेस हैं, क्या बुराई उनसे हो सकती थी या नहीं? हो सकती थी, लेकिन अल्लाह से डरने वाला जवान था। उसकी तामीरी सोच थी, वो सहाबी रसूल थे। इतने में अनाक ने आवाज लगाई, या अहल मक्का, या अहल मक्का, अस्रिउ इला रजुलिन, अस्रिउ इला रजुलिन युरीदु असराकुम, अस्रिउ इला रजुलिन युरीदु असराकुम। मक्के वाले दौड़ो दौड़ो, देखो ये जवान आया है जो तुम्हारे कैदियों को छुड़ा कर ले जाएगा, दौड़ो पकड़ो। इतने में मक्के के लोग उठे, भगे आवाज की तरफ। मरसद कहते हैं मैं भी दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए, और दौड़ते हुए एक पहाड़ी के नीचे उतरा और जाकर के वहां एक गार नुमा जगह थी, मैं जाकर वहां छुपा, अल्लाह से दुआ करने लगा, अल्लाह मुझे इससे बचा ले। कहते हैं मरसद के लोग दौड़ते हुए मेरे पीछे आए, लेकिन मुझे ना पा सके। अलबत्ता उसी पहाड़ी पर आकर के खड़े हुए, देर तक बातें करते रहे। वहीं खड़े होकर उन्होंने पेशाब तक किया, जो पेशाब मेरे सर और जिस्म पर गिर रहा था नीचे पहाड़ी। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करते हुए खड़ा था, अल्लाह मुझे इनके शर से बचा ले, महफूज कर ले। कहते हैं जब काफी देर तक वो खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखें अल्लाह ने इस तरह से कर दी, गोया वो अंधे हो गए, मुझे नहीं देख सके। वो ऊपर थे, मैं नीचे था। बातें करके कुछ देर इंतजार करके वो लोग वापस गए अपने बिस्तरों में, नरम गरम बिस्तरों में सो गए, लिपट गए। काफी देर इंतजार के बाद मैं निकला कि शायद अब सो गए होंगे। गया, मैंने जाकर के अपने एक भाई को बेड़ियों से आजाद किया, जिन गुलामों को कैद किया गया था, और उन्हें लेकर के मैं आया, मदीने की राह पर चल पड़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने सारा माजरा कह सुना। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फतवा पूछना है। क्या है मरसद, बोलो। कहा इस बार जो मैं गया तो मेरे राह में एक चीज रुकावट बन गई, अल्लाह के रसूल, बड़ी मुश्किल से बचाऊं। अल्लाह ने बचाई मेरी जान। क्या हुआ? कहा जमाने जाहिलियत में एक खातून थी आना, जिससे मेरी फ्रेंडशिप थी, वो इत्तेफाक से आज मिल गई, जो काफिरा है, मुशरिका है। उसने मुझे बुराई की तरफ ललकारा। जब मैंने उसकी बात पर लब्बैक नहीं कहा तो उसने शोर मचाया, लोग मुझे पकड़ने धकड़ने की तरफ आए, लेकिन अल्लाह ने बचाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि क्या मैं अनाक से अगर शादी कर लूं तो अच्छा नहीं होगा, ताकि मेरे राह की रुकावट खत्म हो जाए? कभी वो मिले तो मेरी चाहने वाली मेरे राह की रुकावट ना बनने वाली हो, मदद करने वाली हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थोड़ा, आयत लेकर के जिब्रील उतरे, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान लाने वालों, तुम मुशरिका औरतों से शादी न करो, भले वो देखने में कितनी अच्छी भली हो, इसके मुकाबले में तो वो लौंडी बेहतर है जो मोमिना हो, ईमान वाली हो, वो लौंडी बेहतर है। इस मुशरिका और काफिरा से शादी न करो, और न ही ईमान वाली खवातीन की शादियां तुम मुशरिक लोगों से करो, भले वो देखने में कितने अच्छे भले क्यों ना मालूम हो, उनके मुकाबले में तो वो गुलाम अच्छा है जो ईमान वाला हो। उनसे अपने बेटे और बेटियों, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, उनकी शादियां करो अगर तुम उसके वली हो। ये आयत उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसद को कहा, नहीं, आपकी शादी नहीं हो सकती है अनाक से, वो मुशरिका है, काफिरा है, जब तक कोई इस्लाम न ले। नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरसद जैसे जवान ने क्या तामीर समाज का काम किया या नहीं? बोलो। वो इस बुराई में मुलव्वस हो सकता था, इस फसाद और बिगाड़ का शिकार हो सकता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाया। और आज हमारा हाल ये है कि हर हाथ में एंड्रॉयड फोन, हर हाथ में स्मार्टफोन। क्या कर रहे हैं हमारे जवान? घर में बेडरूम में बैठकर फ्रेंड ढूंढ रहे हैं। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, कौन बनेगा मेरा दोस्त? सारे वसाइल आपके पास है, सारे बुराइयों के अड्डे आपके सामने खुले हैं, सिर्फ एक फिंगर टिक की जरूरत है, टिक और सब कुछ सामने।
इस फेसबुक ने इस कदर बिगाड़ा है, इस कदर तखरीबी रोल अदा किया है हमारे समाज में कि अभी कर्नाटक के दौरे पर मैं था, हमारे एक साथी बताने लगे, एक वर्कशॉप में आए थे कि मौलाना इसी फेसबुक ने एक बार इस पर 2 जवान, एक खातून और एक मर्द आपस में चैटिंग करते थे फेसबुक पर, नाम बदलकर, चेहरा बदलकर बातचीत करते हुए उन्होंने अहदो पैमान कर लिए और उस वक्त मुकर्ररा पर उस जगह पर पहुंचे। दोनों ने वक्त तय किया, जगह तय किया और पहुंचे। क्या हुआ? आंखें खुली तो बिल्कुल परेशान, ये तो मेरा सगा भाई और मैं उसकी सगी बहन। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नौजवानों कहाँ हैं? इस स्मार्टफोन ने हमें किस कदर रुस्वा किया है, हम किस चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। क्या ऐसे में तकाजा नहीं है कि नौजवान अपने आप को संभालें, इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल पॉजिटिव करें, निगेटिव से बचें। मेरे भाइयों, इसके लिए वर्कशॉप होने चाहिए और मैं आपके इल्म के लिए बता दूं कि आपकी इसी दिल्ली, इसी कैपिटल सिटी में व्हाट्सएप मुक्त अभियान शुरू हो चुका है, उसकी ऑफिस कायम हो चुकी है। क्यों? इसलिए कि शिकायतें पहुंच रही हैं, इस व्हाट्सएप ने कितने रिश्तों को तोड़ा है। नौजवान काम करने गया, शादीशुदा है, बीवी के पास स्मार्टफोन है, चैटिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्रेंडशिप, शाम को आने के बाद स्मार्टफोन शौहर के हाथ लगा। अरे भाई, ये कौन है? ये तुम्हारा दोस्त कौन है? किससे चैटिंग किया इतनी देर तक तुमने? तफ्तीश हुई, पता लगा मैं जब गायब रहता हूं मेरी बीवी किसी और से फ्रेंडशिप करके चैटिंग कर रही है। तलाक, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। अगर एक से ज्यादा तुम्हारे पास है तो मेरी क्या जरूरत है? कितने रिश्ते इस कदर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे नौजवानों कभी सोचा है आपने, ये छोटा सा एंड्रॉयड फोन क्या कारकर्दगी कर रहा है, क्या रोल निभा रहा है? शैतान किस कदर हमारे नौजवानों की जज्बात से खेल रहा है। कितने रिश्ते टूटते और बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ताने बाने बिल्कुल मुंतशिर हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस बड़े अजाब से हमारे नौजवानों को बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, अगर हमने अपने जवानों को ये स्मार्टफोन दिया, अपने स्टूडेंट्स को ये फोन हमने अता फरमाया, इसलिए कि हम वालिद हैं, इसलिए कि हम बड़े भाई हैं, इसलिए कि हम गार्जियन हैं, और हमने उनको इसका सही यूज न बताया, हमने उनमें इखलास न पैदा किया, हमने उनको अल्लाह से डरने वाला न बनाया, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह भलाई करने वाला किसी के साथ भलाई करता है तो सबसे जारिया पाता है, उसके कहने पर अगर कोई नौजवान सुधर जाता है, नेकी की राह पर आ जाता है, तो बताने वाले को बराबर उसके खाते में सवाल जाता रहता है। ऐसे अगर आपने ये एंड्रॉयड फोन दे करके आपने वली बनने का अगर हक अदा किया है, आपने गार्जियन बनने का हक अदा किया है, लेकिन आपने अपने नौजवान बेटी को, आपने अपने जवान बेटे को, आपने उस जवान रिश्तेदार को अगर आपने नहीं बताया कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, गलत राह पर हमारे जवान अगर लगे तो इसका हिस्सा आपको भी मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को समाज की तामीर की फिक्र अता फरमाए। ये थे सहाबा जो अपने आप को बचाते थे, तमाम तर वसाइल और सोर्सेस के मौजूद होते हुए, बुराई का तमाम मौका और चांस होते हुए भी उन्होंने करीब से भी देख करके धुतकार दिया, इसलिए कि अल्लाह का डर। तामीर समाज में नौजवानों का किरदार। आज हमारे जवानों से कहा जाता है, नौजवानों ये देखो तुम तंबाकू के आदी हो, सिगरेट पीते हो इसलिए कि कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी के बाउंड्री में आ गए हो, ये बीड़ी नोशी की आदत तुम्हें लग गई है, ये गुटखे तुम खाते हो, ये सारी बीमारियों की चीजें हैं, इससे तुम्हें कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर, फेफड़े का कैंसर, दिल की बीमारियां, अपने आप को बचाओ। मौलाना क्या करूं, अमल लग गई है। कौन सी अमल है भाई? ये बदअमली है। नौजवानों आओ मैं आपको बताऊं,
सहाबा किराम की तामीरी सोच। एक जमाना था कि शराब हराम नहीं हुई थी। मक्के में पूरी 13 साल लाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी उस वक्त शराब हराम नहीं हुई, और शराब इस कदर मक्के में लोग पीते थे कि जैसे हम घड़ों में पानी, मटकों में पानी रख करके पिया करते हैं, ऐसे शराब उनके यहाँ मटकों में रखी जाती थी। जब भी जरूरत हुई गिलास से निकाला और पिया। ये हालत थी, उनकी गुट्टी में ये चीज बैठ गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब को हराम करने के लिए अलग अलग 3 स्टेप्स लिए। सबसे पहले अल्लाह ने सूरह बकरा सूरत नंबर 2 की 219 नंबर की आयत उतारी। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ऐ नबी, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इनको बता दीजिए इसमें बड़ा गुनाह है, थोड़ा सा फायदा भी है। मतलब गुनाह जब ज्यादा है तो बचो, लेकिन अभी शराब हराम नहीं हुई थी। अभी लोग पी रहे हैं, लेकिन नफरत दिला दी अल्लाह ताला ने शराब से। बचने वाले बचने भी लगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पी रहे क्योंकि शराब हराम नहीं हुई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 43-43 नाजिल फरमाई और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। नमाज फर्ज हो गई थी। ऐ ईमान लाने वालों, देखो नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे की हालत में। मतलब क्या था? हर नमाज के वक्त में शराब पी लो ताकि नशा आ जाए और नमाज माफ हो जाए? नहीं, नमाज फर्ज हो गई थी। ये आयत असल में हमारी तरबियत कर रही थी। ये लोगों, अब देखो जब नमाज फर्ज हो गई है तो कहां ज्यादा वक्फा है? आप मगरिब पढ़ते, असर पढ़ते हो, उसके थोड़ी देर के बाद मगरिब है, मगरिब पढ़ते हो फिर थोड़ी देर के बाद इशा है। हाँ, इशा के बाद ठीक एक लंबा गैप है, फजर के बाद फिर थोड़ा सा वक्फा है, लेकिन अक्सर नमाजें तो बस थोड़े से वक्फे के बाद है। यानी शराब से बचो ताकि तुम्हारी नमाज ही न छूटे, ये मतलब था। नशे की हालत में जाओ ही मत कि तुम्हें नमाज छोड़ना पड़े। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुतनफिर हो गए, लेकिन कुछ पी रहे क्योंकि शराब अभी क्लियर हराम नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी बार शराब को हराम करने के लिए सूरह माइदा सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 90 नाजिल फरमाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, बेशक शराब, जुआ, पांसे के तीर जिससे फाल निकालते हो, और ये आस्ताने जहां गैरुल्लाह के नाम के ज़बीहे करते हो, ये सब पलीद नापाक शैतानी काम है। फज्तनिबू, सो अवॉइड देम लअल्लकुम तुफ्लिहून, सो दैट यू मे बी प्रॉस्पर। बचो इनसे, बचो इनसे, ताकि निजात मिले तुमको। मतलब शराब क्या हो गई? बचो, मतलब शराब हराम, अब नहीं पीना है। सही बुखारी किताबुल मजालिम हदीस नंबर 2464 2464 बाबो सब्बिल खम्र फित तरीक। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, रास्ते में शराब को उंडेलने का बयान। उस चैप्टर में यह हदीस लेकर आए। हजरत अनस कहते हैं कि जिस दिन ये सूरह माइदा की आयत नंबर 90 नाजिल हुई, मैं अबू तलहा अंसारी के घर में लोगों को खजूर से बनी हुई बड़ी उम्दा शराब फदीख पिला रहा था कि इतने में मुनादी आवाज लगाते हुए आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, सुनो शराब हराम हो गई है, सुनो शराब हराम हो गई है। अबू तलहा ने कहा, अनस जरा बाहर निकलो, देखो तो कैसी आवाज है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर गए, सुनकर आए, कहा कि शराब हराम हो गई। मुनादी आवाज लगा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, शराब हराम हो गई। हजरत अबू तलहा ने वो जाम जो उनके और उनके साथियों के मुंह लगे हुए थे उसे फेंक दिए, गिलासेस तोड़ दिए और कहा, अनस अब जब शराब हराम हो गई है तो देर किस बात की है? ये मटके जिनमें शराब रखी हुई है, ले जाओ, एक एक करके गली कुचों में फोड़ दो, उंडेल दो शराब, हमें इसकी जरूरत। ले जाकर एक एक मटके हजरत अनस उंडेलते रहे, फेंकते रहे, बर्बाद करते रहे। उनका कहना है ये शराब मदीने के गलियों में ऐसे बहने लगी जैसे बरसात का पानी अभी उतर आया।
इस कदर शरारती मदीने। मेरे भाइयों, नौजवानों, वो जवान थे जो शराब पी रहे। एक आवाज आई, बचो, कामयाबी इसमें है। देर नहीं, कोई चूनो चरा नहीं, उसके बाद कोई सवाल नहीं। लेकिन आज एक जवान से हम कहते हैं, मेरे जवान, ये सिगरेट की पैकेट जो तुम्हारे जेब में है, ये सिगरेट जो निकाल कर तुम जला रहे हो, पी रहे हो, इसके कश ले रहे हो, कभी तुमने पढ़ा है इट इज डेंजरस फॉर यू हेल्थ? जरा उसकी पैकेट निकालो। अच्छा, इंपोर्टेड है, देखो क्या लिखा है। लिखा हुआ है, इट इज मेंशन अपॉन द पैकेट। क्या है? स्मोकिंग। इंडिया लिखता है स्मोकिंग किल्स, बस है ना। स्मोकिंग करने से आदमी मरता है। लेकिन बाहर की कंपनियां थोड़ा सा अमानतदारी का सबूत देते हुए कुछ जुमले लिखती हैं। क्या कहते हैं? स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस एंड डेंजरस फॉर योर हेल्थ। स्मोकिंग करने से तुम्हें लंग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर होता है, दिल की बीमारियां होती हैं और सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन है मेरे जवान, इसके बावजूद तुम खरीदते और पीते हो और कहते हो मौलाना सिगरेट का नाम तो कुरान में नहीं आया ना, बीड़ी का नाम तो कुरान में नहीं आया ना। आओ मैं आपको आज बतला दूं, तामीली सोच रखो जवानों, कम से कम अपनी तो सोचो। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपनी सेहत की तो फिक्र कर। शरीयत ने इन चीजों को जो हमारे जान के लिए मोहलिक है, हराम करार दिया है। 3 दलाइल की रोशनी में बात आ गई है तो मैं आपको बतला दूं, तंबाकू, टोबैको और इससे बनी हुई तमाम अशिया, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो गुटके हो या इस जैसी और दूसरी चीजें जो तंबाकू से बनती हैं, मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम हराम, शरीयत की नजर में हराम है। आप कह रहे होंगे क्या दलील है? जी, उलमाए हक ने 3 दलीलें दी हैं। नंबर 1, ये तंबाकू और इससे बनी हुई चीजें सब खबीस हैं, पलीद हैं। एक आदमी सिगरेट पीता है, दूसरा नहीं पिया उसने कभी। बताओ, आप अगर उसके पास बैठकर सिगरेट की कश लो, उसका धुआं भी उसको बर्दाश्त होता है? होता है मेरे भाई? नहीं। आप अगर जरा शरीफ हो तो उठकर चले जाते हो, चलो भाई इनके पास कौन बैठेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि भाई जरा जोश और जज्बे वाले हैं, उठ, पब्लिक प्लेस है, क्या कर रहा है, मार खाना है क्या? ऐसा भी होता है। मतलब एक सलीमुल फितरत इंसान, पाकीज़गी वाला, तहारत वाला, नफासत पसंद, वो इसके धुएं तक को बर्दाश्त नहीं करता। ये दलील है कि ये चीज खबीस है। खबीस चीजों में इसका शुमार है जो चीज तंबाकू है उससे बनी हुई चीज। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ये नबी हलाल चीजें, पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल ठहराता है अल्लाह के हुक्म से, और ये नबी खबीस चीजों को हराम ठहराता है। उलमा ने कहा ये खबीस है, हराम। नंबर 2, सिगरेट नोशी, बीड़ी नोशी, तंबाकू नोशी, नौजवानों इससे अपने आप को बचाओ, हराम है। दूसरी दलील, जब ये खबीस चीज है तो इसमें अपने पैसे लगाना ये फुजुल खर्ची है। हराम चीज में, वो भी हराम चीज में फुजुल खर्ची हम कर रहे हैं। और शरीयत ने दोनों तरह की फुजुल खर्ची से मना फरमाया है। आप अगर कोई हलाल काम भी कर रहे हो लेकिन ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो बिना वजह, वो भी फुजुल खर्ची है, हराम है। और दूसरे ये कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है, बैंड बाजा बुक करके ला रहा है, म्यूजिक लोगों को सुना रहा है, उसमें भी फुजुल खर्ची कर रहा है, ये भी फुजुल खर्ची है, लेकिन ये हराम चीज में। और दोनों किस्म की फुजुल खर्चियां हराम है। कुरान ने कहा, वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। ऐ मेरे भाई देख, वला तुबद्दिर तबदीरा, अल्लाह ताला कह रहा है, देख है बंदे, तू फुजुल खर्ची न कर, शैतान का भाई न बन, इसलिए कि फुजुल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। मेरे जवानों बताओ, तुम इंसानों का भाई बनना चाहते हो, शरीफों का भाई या शैतान का? बोलो,
कभी हम नहीं पसंद करेंगे कि हम शैतान के भाई बने। अल्लाह ने मना फरमाया ऐसी फजूल खर्ची से बचो। नंबर 3, हम देख रहे हैं कि कंपनियां खुद लिख रही हैं ये चीजें, इनसे फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारियां और हमारी सेहत के लिए बड़ी खतरनाक चीजें हैं ये टोबैको और उससे बनी हुई चीजें, फिर भी हम खरीदते हैं। मतलब किस्तवार खुदकुशी कर रहे हैं, किस्तों में अपने आप को मार रहे हैं। और कुरान ने क्या फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों से अपने आप को हिलाकत में न डालो, मत मारो अपने आप को। ये दलाइल हैं, उलमाए हक ने इन दलाइल की बुनियाद पर कि नंबर 1 ये चीजें खबीस हैं, नंबर 2 इनमें पैसा लगाना फजूल खर्ची है जो हराम है, नंबर 3 अपने आप को मारना, खुदकुशी करना हराम है, और जो जवानी से पीता है इससे जुड़ा हुआ है वो किस्तों में खुदकुशी करने जा रहा है, इसलिए उसको बचना चाहिए। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जब इसका नाम कुरान में नहीं है, ठीक है, बात यही है तो मैं ये भी बता दूं आपको कि इसका नाम हदीस में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। हर नशा आवर चीज क्या है? हराम। कुछ चीजें नशा आवर होती हैं, कुछ चीजें अकल में फतूर डालने वाली होती हैं। अब अगर यही सिगरेट एक जवान जिसने कभी नहीं पिया है जरा पिला करके देखो क्या होता है, उसकी अकल किस तरह मारी जाती है, किस तरह माउफ ज़यान हो जाता है। अगर इसका जिक्र हदीस में आया कि नशा पैदा करने वाली और मुफ्तिर फतूर डालने वाली ये चीजें हराम हैं, अब नाम जो भी हो, आप उसको एमडी पाउडर कह लें, आप उसको टोबैको कह लें, आप उसको तंबाकू कह लें, आप उसको सिगरेट या बीड़ी कह लें, आप उसको चरस कह लें, आप कुछ भी नाम दे लें, लेकिन शरीयत ने जो कायदा दिया है नशा आवर चीज, फतूर अक्ल में डालने वाली चीज वो हराम है। अब अगर इसका जिक्र हदीस में है तो मुझे कहने दीजिए कि इसका जिक्र कुरान में भी है। इसलिए कि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह, सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करें उससे, नबी ने हदीस में मना फरमाया, बोलो मना फरमाया कि नहीं? तो आप अगर देखेंगे इनडायरेक्ट इसका जिक्र कुरान में भी, कुरान कह रहा है कि नबी जिससे रोक रहे उससे बचो। अल्लाह ताला हमारे जवानों को इन मुहलिक चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए, तामीर समाज की जो काम है अल्लाह उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सहाबा किराम ऐसे थे कि उन्होंने तामीर समाज के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आए। मेहमान नवाजी करना ये एक तामीरी काम है, गरीबों को खाना खिलाना समाज में एक तामीरी काम है, लोगों की खबरगिरी करना, जिनके पास फाके हो रहे हैं उनके घर खाना पहुंचा देना एक तामीरी काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आए, आपके घर में कुछ नहीं था। आपने सहाबा से पूछा कौन है जो मेरे इस मेहमान को अपने घर ले जाए। सही बुखारी किताब तफसीर में सूरह हश्र की आयत नंबर 9 उसकी शान नुज़ूल में ये चीज मुझे वाक़या मौजूद है। एक सहाबी अबू तलहा अंसारी जिनका जिक्र अभी हो रहा है, इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके मेहमान को ले जाऊंगा। ले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लाए, पूछा बेगम घर में है खाने को कुछ? मैं नबी के मेहमान को लेकर आया। बीवी ने देखा तो कहा कि सिर्फ बच्चों को खाने भर का थोड़ा सा है, हम लोगों को भी आज फाका करना है क्योंकि सिर्फ बच्चों की खुराक के बराबर घर में है। क्या किया जाए फिर? मेहमान है वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लेके आया है, मेहमान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि एक काम करो बेगम, देखो ये जो बच्चों का खाना है ना, हम लोग फाका कर लेते हैं, बच्चों को भी आप जरा सुला दो, किसी तरह सुला दो, उनका ये खाना गर्म करके आप मेहमान के सामने रखो और मैं भी बैठूंगा। मेहमान जब खाना शुरू कर दे तो आप अपने चिराग के पास उसको ठीक करने के बहाने जाना और फूंक कर उसे बुझा देना। मैं बैठूंगा, मैं भी हाथ चलाता रहूंगा, अंधेरे में मेहमान को महसूस होगा कि मेरा मेजबान भी खा रहा है और मेहमान इस तरह पूरा खाना पेट भर खा लेगा, आसूदा हो जाएगा, उसका हक अदा हो जाएगा, हम मियां बीवी भी सो जाएंगे और अपने बच्चों को भी सुला देंगे, अल्लाह सुबह को इंतजाम करेगा। उस वफादार वफाशार बीवी ने कहा ठीक है, अच्छी प्लान है।
ऐसा ही करती हैं। सुभान अल्लाह, शौहर और बीवी, मिसाली मियाँ बीवी ऐसे होनी चाहिए। खाना गर्म करती हैं, बच्चों को थपकियां देकर सुला देती हैं। खुद अपना मियाँ बीवी भूखे हैं, बच्चों का वही खाना गर्म करके लाकर अपने मेहमान को देती हैं। जब खाने लगते हैं ये लोग, तो जाकर चिराग को गुल कर देती हैं, उसको इस्लाह करने के बहाने बुझा देती हैं। अंधेरे में मेहमान खा रहा है, मेजबान से हाथ चला रहा है, और इस तरह ये समझ रहा है कि शायद वो भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। मेहमान का पेट भर जाता है, वह आसूदा हो जाता है। मियाँ बीवी फाका कशी करते हुए सो जाते हैं भूखे पेट, बच्चों को सुला देते हैं भूखा पेट। जानते हो कितना बड़ा तामीर समाज का ये काम था, क्या कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। अर्श वाले को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह फजर होते ही जिब्रील को भेज दिया। सूरह हश्र की आयत नंबर 9 उतर आई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये सहाबा नबी के ऐसे हैं कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे उनके साथ कितनी ही परेशानियां क्यों ना लगी, उनकी अपनी जरूरतें कितनी क्यों ना हो, लेकिन दूसरों को प्रेफरेंस देते हैं अपने ऊपर। पूरी अदब। जब नमाज पढ़ने गए अबू तलहा अंसारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू तलहा आओ खुशखबरी सुना दूं, रात में जो तुमने मेहमान रसूल के साथ कारनामा अंजाम दिया है, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, ये तामीरी काम तुम्हारा इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी की शान में आयत कुरानी नाज़िल फरमा दी। ये सुन लो। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, क्या आज हमारे समाज में जज्बा है? होना चाहिए, एक तामीरी काम है। इसी तरह हमारे समाज में हमारे जवान जिनके जज्बात बड़े गर्म हैं, जिनका लहू बड़ा गर्म है, जिनका खून बड़ा ही गरमाया हुआ रहता है, थोड़ी थोड़ी सी बात पर आपस में गर्म हो जाते हैं। तू मैंने से लेकर हाथापाई की नौबत आती है, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि भाई मेरे पास रिवॉल्वर है, तुम्हारे पास क्या है? ये देखो, आगे मत बढ़ना नौजवानों, ये तामीरी काम नहीं है, तखरीबी है। इंसानी बिरादरी में मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, जहां पर बर्तन जमा होते हैं वहां बजते हैं। इंसानी बिरादरी में हम रहते हैं, तू मैं हो जाना, किसी बात पर रंजिश हो जाना, किसी का नाराज होकर के तू मैं पर उतर आना, ये उतने बड़े ऐब की बात नहीं है जितना बड़ा ऐब ये है कि हम इस कदर आपस में बाहम बकरीबा हो जाएं कि एक दूसरे को तोड़ फोड़ दें। बर्तनों का बजना बुरा नहीं, लेकिन बर्तन अगर बजकर टूट जाए ये बुरा है। नौजवानों, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखो, काबू रखो, जैसे सहाबे किराम ने किया था। ये तामीरी काम है। समाज के साथ तुम एहसान करने वाले होगे अगर आप अपने जज्बात पर काबू और कंट्रोल करने वाले हो। मैं आपको वाकया सुनाऊं, आपने हजरत बिलाल का नाम सुना है? बिलाल कौन थे भाई? हजरत बिलाल मुअद्दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी थे, मुअज्जिन रसूल थे। ऐसे मुअज्जिन कि मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके स्लीपर की आवाज जन्नत में सुनी और आकर बशारत दी, बिलाल तुमको मैं जन्नत में चलता हुआ पा रहा था। यानी तुम क्या हो? बोलो, जन्नती। ये मकाम है मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा ये बताओ, बिलाल ब्लैक थे या व्हाइट? कलर क्या था उनका? इसलिए कि वो हबशा के थे, उनकी माँ भी हबशा की थी, वो भी ब्लैक कलर की थी। हुआ ये कि एक बार हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, उनका झगड़ा हो गया हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। अबू ज़र ग़िफ़ारी गोरे चट्टे इंसान थे, अरब कबीले के थे। अनबन हो गई किसी बात पर, बिलाल ने कुछ कहा, अबू ज़र ने कुछ कह दिया, और अबू ज़र ताना दे बैठे हजरत अबू ज़र बिलाल को। कहा, क्या कहा? यब्न सौदा अंता तक़ूलु कज़ा व कज़ा, जिसका तर्जुमा है, ए कालिया के बेटे तेरी जुर्रत ऐसा कहने की? जैसा आजकल होता है, अरे तू तो फलां का बेटा, अरे तू, तेरा खानदान ऐसा और वैसा। इस तरह हमारे नौजवान आपस में तू मैंने करते हुए झगड़ते हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है, लेकिन इंसान है, जज्बात गर्म हो गए और उन्होंने ताना दे दिया, कह दिया कि ए ब्लैक खातून के बेटे, तुमने ऐसा कैसे कहा? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? लेकिन थे जोश और जज्बे में। हुआ क्या,
बिलाल भी अगर उसी तरह का जवाब देते तो क्या होता। बड़े पावरफुल थे बिलाल। और आप जानते हैं हबशा के लोग कितने ताकतवर और पावरफुल होते हैं। आपके इल्म के लिए बता दूं, क़यामत के करीब की एक निशानी ये भी है कि उसी हबशा का एक इंसान जिसका नाम है ज़ुस्सुवैक़तैन पैदा होगा और वही आकर के खाने काबा की ईंट से ईंट बजाएगा, तोड़ डालेगा उसको। वो हबशा, वहां के रहने वाले बिलाल हबशी इतने ताकतवर और पावरफुल कि चाहते तो मुकाबला करते। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ सकते थे, लेकिन तामीरी सोच थी उनकी। क्या क्या उन्होंने सब्र किया। नम आंखों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचे, जज्बात पर कंट्रोल और काबू करते हुए, और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र ग़िफ़ारी से मेरी बातचीत हुई, थोड़ी तू मैं हो गई, और देखो ऐसा ऐसा कह दिया मुझे अबू ज़र ने, मुझे तकलीफ हुई अल्लाह के रसूल से। बोलो नौजवानों, क्या आज हमारे मसाइल, हमारे झगड़े क्या खाने खुदा में हल नहीं हो सकते? क्या किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है? हम अपने इन मसाइल का हल आकर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से नहीं पूछ सकते? पूछ सकते, लेकिन जज्बा नहीं है, तामीरी सोच नहीं है। आज तखरीब कायम जिस तरह बढ़ रही है उस तरह तामीरी सोच नहीं। मेरे भाइयों, तामीरी सोच लाने की जरूरत है। अदालत नबी में मुकदमा दायर होता है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलाए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू ज़र आयरतहु बि उम्मी इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया। अबू ज़र, तुम अरब खानदान के हो ना, लेकिन अब भी तुम्हारे अंदर ज़माने जाहिलियत की सिफात पाई जा रही है। ये क्या कहा आपने? बिलाल को उनकी माँ का ताना दिया है आपने? माफी मांगनी चाहिए। अबू ज़र, शर्म करो, अपने भाई को आपने उनकी माँ के हवाले से ताना दिया है। ये ज़माने जाहिलियत की सिफत है। ज़माने जाहिलियत के लोग इस तरह किया करते थे, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ ज़माने जाहिलियत की सिफात तुम्हें पाई जा रही है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि गुस्सा भी उनका खत्म हो गया है। बैठते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, एक इल्तिमास है। क्या है? बिलाल से कहो आए, मैं बैठा हूं, अपने दोनों पैर मेरे कंधे पर रखकर मुझ पर सवार हो जाएं, मुझे कुचलें, मुझे दबाएं और मुझे बताएं कि मेरी हकीकत क्या है। मैंने इनको तकलीफ दी, इनके माँ के हवाले से इनको हमने ताना दिया है। अल्लाह के रसूल, मैं मुजरिम हूं, गलतकार हूं, जरा बिलाल से कहो अपने इन्हीं काले पैरों से मेरे कंधे पर रख करके अपने पांव को मुझे कुचलें, दबाएं और इसी जमीन के हवाले कर दें, ताकि मुझे समझ आ जाए मेरी हकीकत क्या है। बिलाल ने कहा, मैं माफ करता हूं मुझे, मैं माफ करता हूं मुझे। मेरे नौजवानों, क्या आज हमारे समाज और माशरे में आपस के खानदानों के अंदर छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां होती हैं? क्या तामीरी सोच है? और ये लड़ाइयां इस कदर आगे बढ़ जाती हैं कि औस और खजरज की मिसालें नाकाफी हैं। वो भी ऐसे थे इस्लाम से पहले कि ऊंट तुम्हारा हमारे खेत में क्यों आया? लड़ाइयां शुरू, तलवारें निकल आई तो म्यान के अंदर जाने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस्लाम आया तो उसने उन्हें पिरो दिया एक लड़ी के अंदर, मोहब्बत के लड़ी में, सिलसिले में पिरो गए, वो शिरो शकर हो गए और इस कदर मुत्तहिद और भाई भाई बन गए कि सगे भाई में उतनी मोहब्बत क्या होगी। नौजवानों, तामीरी सोच बनाओ। बातें बहुत हैं, लेकिन आपके सेशन की खुसूसियत है कि सवाल और जवाब भी हो। मैं अपील करने आया हूं, ये कुछ मिसालें देकर आपको झिझोड़ने आया हूं। आप अपने अंदर तामीरी सोच लाओ ताकि समाज के मोहसिन बन सको। अगर आप अपने आप को बुराइयों से बचाते हो, दूसरों को बचाने की फिक्र करते हो, आप तामीर समाज का काम कर रहे हो। अगर आप अच्छाइयां करते हो और करने पर दूसरों को आमादा करते हो, आप तामीर समाज का काम कर रहे हो और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर आप चल रहे हो। अल्लाह ताला जो बातें कही गई हैं, हमें इनकी रोशनी में अपने समाज में रहते हुए तामीरी काम करने और दूसरों को तरगीब देने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।